Okay, AS 21, page number 10.30, example 5. So H Limited acquires 70% of the equity shares of H Limited on 1st Jan. So date of acquisition is 1st Jan. On that date, paid up capital of H Limited was 10,000 equity shares of rupees 10 each. Accumulated reserve balance was 1 lakh. H Limited paid 1,60,000. So this is cost of investment to acquire 70% interest in the H Limited. Assets of H Limited were revalued on 1st Jan 2001 and a revaluation loss of 20,000 was ascertained. So the book value of shares of H Limited. So share capital 1 lakh का 70% is 70,000. 1 lakh reserves का 70% is 70,000 and 20,000 loss, ये पूरा loss हुआ उसका 70% 14,000. So 1,40,000 minus 14,000 is equal to 1,26,000 and we paid 1,60,000. So excess is goodwill of 34,000. It's shown in the balance sheet under the head intangible asset. Example 6. A Limited acquired 70% interest in B Limited on 1st Jan. On that date, B Limited had paid up capital of rupees 1 lakh, consisting of 10,000 equity shares of rupees 10 each and accumulated balance in reserves and surplus of rupees 1 lakh. On that date, assets and liabilities of B Limited were also revalued and revaluation profit of rupees 20,000 was calculated. A Limited paid 1,30,000 to purchase the said interest. So again 1 lakh share capital का 70% 70,000, 1 lakh reserves का 70% 70,000, फिर 20,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो ये 14,000 भी ऐड करना पड़ेगा. सो टोटल हो गया 1,54,000. वी पेड 1,30,000. सो वी पेड लेस, सो वी there is a profit, capital profit, so it will be transferred to capital reserve and it will be shown in the balance sheet under reserves and surplus as capital reserve. 7. Example 7. H Limited acquired 16,000 equity shares of rupees 10 each in H Limited on 1st October 2001 for rupees 3,06,800. So date of acquisition is 1st October. The profit and loss account of H Limited showed a balance of rupees 10,000 on 1st April. Starting opening balance है and date of acquisition है 1st October. The plant and machinery of H Limited, which stood in the books at 1,50,000 on 1st April, was considered worth 1,80,000 on the date of acquisition. The information of the two companies: share capital, general reserve, P&L, current liabilities, land, building, plant, machinery, investment, current assets. So percentage of holding देखो पहले कैसे किया है उन्होंने कि एस लिमिटेड का 2 लाख है शेयर कैपिटल. एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का. सो नंबर ऑफ शेयर 20,000 में से 16,000 एच लिमिटेड के है. सो 80% एंड माइनॉरिटी 20%. सो इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. सो बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी था 1,50,000 ना, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन को 1,80,000. डेट ऑफ एक्विजिशन 1st अक्टूबर था. सो 1st अप्रैल से 1st अक्टूबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स. सो 1,50,000 पे रेट कैलकुलेट किया है उन्होंने. डेप्रीसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट किया? ये 31 मार्च 2002 को, मतलब बैलेंस शीट डेट को, ईयर एंड को 1,35,000 था एंड ओपनिंग में 1,50,000, मतलब टोटल 15,000 का डेप्रीसिएशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए 10% रेट है. तो अभी ये रेट 6 मंथ्स के लिए आपको लगाना है, मतलब हाफ हो जाएगा ना, 7,500. सो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1st अक्टूबर इज 1,42,500. 1st अक्टूबर की कंपेयर इट विथ revalued amount था 1,80,000. So there is a revaluation profit of 37,500.
उसका 80% होल्डिंग को मिलेगा, 20% माइनॉरिटी को मिलेगी। ओके, सो 30,000 होल्डिंग का, 7,500 माइनॉरिटी का। अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन देखो, ऑन एप्रिसिएटेड वैल्यू टू बी चार्ज फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एक्विजिशन डेट याद है क्या? 1 अक्टूबर। सो 1,50,000 जो ओपनिंग बैलेंस था ना, उसके ऊपर 6 मंथ्स का 10% है, सो 15,000 एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए पे 6%, 6 मंथ्स के लिए 10%, तो वो टोटल कितना आ रहा है? ये 5% से 7,500 आएगा और ये 9,000, सो टोटल 7,500 प्लस 9,000, 16,500 माइनस ऑलरेडी 15,000 प्रोवाइड किया है बुक्स में, सो और 1,500 ही बुक करना है। तो ये जो 1,500 बुक करना है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को क्यों चार्ज करना है, प्री को क्यों नहीं? क्योंकि प्री हो गया ना, प्री तो पोस्ट मतलब कि अब तो कंसोलिडेशन हो गया है ना, तो उसके बाद से ही जो होगा प्रॉफिट उसी में ऐड या लेस करेंगे। कंसोलिडेशन नहीं हुआ, अब कर रहे हैं ना, कंसोलिडेशन के ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन का मीनिंग क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन। पहले हमने ये रिवैल्यूएशन कौन से डेट को किया? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को रिवैल्यूएशन किया ना, तब तक तो वो 1.5 लाख ही था। 1,80,000 1 अक्टूबर को हुआ, दैट वाज द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके बाद का जो 6 मंथ्स का पीरियड है, दैट वाज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से वो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करना है। अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं होता तो 15,000 डेप्रिसिएशन होता ना बुक वैल्यू, सो 7,500 7,500 पोस्ट एंड प्री का, बट पोस्ट का 1,80,000 पे हो रहा है, 9,000 आ गया ना पोस्ट का, जो 7,500 आना चाहिए, इसलिए तो वो 1,500 एडिशनल आपको प्रोवाइड करना है फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एंड उसमें अगेन होल्डिंग का डेप्रिसिएशन का शेयर है माइनॉरिटी का। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ही कुछ नहीं था क्या? सो इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होता है एंड उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे आता है। ओके, नाउ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम सब्सिडियरीज एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, interest, dividend and rentals receivable in connection with an investment are generally regarded as income, being the return on investment. However, in some circumstances, such inflows represent a recovery of cost and do not form part of income. मतलब some circumstances में उसको income नहीं दिखाना है, it should be deducted from the cost, that interest income or dividend income. Example, when unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest bearing investment. Interest bearing investment डिबेंचर ले सकते हैं एग्जाम्पल, इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट हुआ ना डिबेंचर्स, सो डिबेंचर एक्वायर करने से पहले जो इंटरेस्ट एक्रूड है एंड अनपेड है, तो वो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए या प्रीवियस ओनर को मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। क्यों? बिफोर द एक्विजिशन इंटरेस्ट, व्हेन अनपेड इंटरेस्ट हैज एक्रूड बिफोर द एक्विजिशन ऑफ एन इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, मिलता है कंपनी से, तो करंट होल्डर को ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी के डिबेंचर रजिस्टर में, डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर में आपका नाम होगा ना, वो कहाँ पे ढूंढते बैठेगी प्रीवियस ओनर कौन था। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो प्रीवियस ओनर था। करेक्ट, क्योंकि उसने हेल्ड किया था ना उस पीरियड के लिए। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, व्हेन एन अनपेड इंटरेस्ट हैज एक्रूड before the acquisition of an interest bearing investment
and is therefore included in the price paid for the investment. So जब आप एक्वायर करोगे ना वो डिबेंचर फ्रॉम प्रीवियस ओनर, तो आपको पेमेंट करते समय कॉस्ट पे करनी है, प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है ना कंपनी से, वो इंटरेस्ट आप पहले ही पे करते हो प्रीवियस ओनर को। वो भी तो होशियार है ना, वो बोलेगा ना आपको बाद में कंपनी से मिलने वाला इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट 6 मंथली मिलता है, सो 3 मंथ्स के बाद इसने डिबेंचर सेल कर दिया, तो वो क्या बोलेगा, तुम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लोगे, बट 3 मंथ्स में ओनर था, 3 मंथ्स तुम ओनर थे, तो हाफ हाफ होगा, तो मुझे तुम डिबेंचर्स के साथ 3 मंथ्स के इंटरेस्ट के अमाउंट भी दोगे। सो इट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उसमें वो इंटरेस्ट भी इंक्लूड था, एंड जब आपको इंटरेस्ट मिला फ्रॉम कंपनी वो रिकवर होगा। सो इट इज द रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्लियर? सो द सब्सिक्वेंट रिसीट ऑफ इंटरेस्ट इज एलोकेटेड between pre-acquisition and post-acquisition periods. The pre-acquisition portion is deducted from cost. प्री एक्विजिशन पोर्शन क्यों डिडक्ट करना है? बिकॉज इट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, एंड पोस्ट एक्विजिशन के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए तो आप ही एलिजिबल थे क्योंकि आप ही ओनर थे, तो आपका इनकम है, तो वो आपके P&L को क्रेडिट होगा। बट प्री वाला इट्स अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्योंकि पहले आपने पे किया था उसको, इट्स लाइक रीइंबर्समेंट। सो व्हेन डिविडेंड्स ऑन इक्विटी आर डिक्लेयर्ड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, a similar treatment that is as mentioned above may apply। मतलब डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अगर आपको मिला है तो आप डिविडेंड क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करोगे। मतलब वो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन की जो वर्किंग नोट है उसमें से ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस होगा। If it is difficult to make such an allocation except on an arbitrary basis, the cost of investment is normally reduced by dividend receivable only if they clearly represent a recovery of part of the cost. When holding company receives dividend from a subsidiary company, it must distinguish between the part received out of capital profits, that is pre-acquisition profits, and revenue profits, that is post-acquisition profits. ये clear cut distinction करना है holding company को। Capital profits are credited to the investment account, being capital receipt, and revenue profits are credited to P&L account. If the controlling interest was acquired during the course of a year, if the controlling interest was acquired during the course, बीच में ही आपने acquire किया है, profit for that year must be apportioned into the pre-acquisition and post-acquisition portion on the basis of time in the absence of information on the point. Okay, so आपको प्री एंड पोस्ट आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिसाइड करना है। जिस दिन एक्वायर किया उस दिन से आगे पोस्ट, पहले का प्री। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द टर्म कैपिटल प्रॉफिट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द जेनेरिक मीनिंग ऑफ द टर्म, कनोट्स प्रॉफिट्स अर्न बाय द सब्सिडियरी कंपनी टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट का मीनिंग है द प्रॉफिट अर्न बिफोर एक्विजिशन, तो वो जनरल रिजर्व भी हो सकता है, P&L का बैलेंस भी हो सकता है, बट उसको भी आप कैपिटल प्रॉफिट ही बोलोगे। एंड जो पोस्ट एक्विजिशन का है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलोगे, इवन इफ इट इज कैपिटल रिजर्व फॉर कंसोलिडेशन पर्पज। एज अ रिजल्ट, प्रॉफिट विच मे बी ऑफ रेवेन्यू नेचर फॉर द सब्सिडियरी कंपनी मे बी कैपिटल प्रॉफिट so far as the holding company is concerned. So treatment in case of post acquisition dividend, देखो post acquisition dividend
का ओनर कौन होना चाहिए? हम ही होने चाहिए। सो हमारे P&L के क्रेडिट को जाना चाहिए वो। सो वो अकाउंटेड बाय सब्सिडियरी। सब्सिडियरी ने क्या अकाउंटिंग किया होगा? इसका डिविडेंड पेड, तो नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड अगर सब्सिडियरी ने अकाउंटिंग किया है। नॉट अकाउंटेड बाय द सब्सिडियरी, तो अभी अकाउंट करो ना, एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन एंड इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंटेड बाय क्रेडिटिंग P&L अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ये पोस्ट एक्विजिशन का हुआ। एंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड अकाउंटेड बाय होल्डिंग कंपनी इफ करेक्टली अकाउंटेड। प्री एक्विजिशन करेक्टली कैसे अकाउंट करना है? एज अ रिडक्शन टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। बट इफ रॉन्गली अकाउंटेड बाय क्रेडिटिंग टू P&L, तो रिवर्स कर दो एंट्री पास एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी। सो हमें जर्नल एंट्रीज नहीं पूछने वाले। सो जो P&L को क्रेडिट किया है वहां से माइनस कर दो प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी माइनस करना पड़ेगा इफ रॉन्ग ट्रीटमेंट इज गिवन। वो इनकम है, रिकवरी हो रही है तुम्हारे कॉस्ट की। P&L को जो क्रेडिट हुआ वो रॉन्ग था, सो माइनस किया वहां से, एंड कॉस्ट से माइनस करना था वो नहीं किया। हमेशा ऐसे नहीं होता। तुम साइंस बैकग्राउंड के हो? हाँ, इधर माइनस तो इधर प्लस, ऐसे नहीं होता है। हाँ, तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो तुम्हें ये सवाल ही नहीं आया होगा। हाँ, if correctly recorded then no adjustment required, if not correctly recorded then correct it, rectify it. If it is credited to P&L, deduct from P&L and deduct from cost. Not accounted by holding company. ओके, यहाँ पर तो अकाउंट किया है, बट उसमें भी दो सिचुएशंस हो सकते, करेक्टली इनकरेक्टली। अकाउंट ही नहीं किया तो एडजस्ट द सेम ना एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। कैसे एडजस्ट करोगे? अकाउंट फॉर एज अ रिडक्शन टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अकाउंटेड बाय द सब्सिडियरी कंपनी, तो एडजस्ट करो द सेम एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन के टाइम उसको कैसे एडजस्ट करना है? इन द सब्सिडियरी रिड्यूस द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडियरी। पहले सब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से लेस करो वो डिविडेंड, फिर जो बैलेंस बचेगा देन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो होल्डिंग के लिए हुआ ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना, वो ट्रीटमेंट होल्डिंग के लिए हो गई। एंड सब्सिडियरी के लिए क्या ट्रीटमेंट है? डिडक्ट फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड before purchase of investments normally also are credited to investment account. So आपको जो डिविडेंड मिला है वो कौन से प्रॉफिट से मिला है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। प्रॉफिट अर्न बिफोर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर डिविडेंड मिला है आपको फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, तो उसको आप ट्रीट करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड उसको इन्वेस्टमेंट से लेस करोगे। क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लेस करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना। एग्जाम्पल 8, इफ शेयर्स इन X Limited are purchased in January 2002 and in April 2002, X Limited declares a dividend in respect of 2001. So if shares in X Limited are purchased in January 2002 and X Limited declares a dividend in respect of 2001 in April 2002, 2001 ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अप्रैल 2002 में एंड हमने शेयर्स एक्वायर किए एक्स लिमिटेड के जैन 2002 में, तो किसको मिलेगा डिविडेंड? हमें मिलेगा, क्योंकि अप्रैल 2002 को हम ओनर थे, बट वो मिल रहा है 2001 का जब हम ओनर नहीं थे,
उसका डिविडेंड हम ले रहे हैं क्योंकि हम ओनर है अभी. द डिविडेंड रिसीव बाय द होल्डर ऑफ द शेयर्स करेक्टली शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम बट एज कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्योंकि जिससे आपने शेयर्स लिए थे उसने पहले ही आपसे डिविडेंड लिया था. हाँ, कैपिटल रिसीट मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करना. नोट, इन केस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय द सब्सिडियरी कंपनी, द होल्डिंग कंपनी लाइक अदर होल्डर्स record no entry, only the number of shares held is increased. So illustration 1 आप सॉल्व करोगे क्या? 5 मिनट में करो सॉल्व. मैं लाती हूँ, मैं जा ही रही हूँ. मैं बोल रहा हूँ. ओके. आगे आगे इलस्ट्रेशन सॉल्व करते रहो. हाँ, आगे सिर्फ इलस्ट्रेशन ही है 13 तक. टोटल 13 इलस्ट्रेशंस है, फिर कुछ कंसेप्ट है, फिर आगे के इलस्ट्रेशंस है. 15. 15. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 एंड 7 हो गए ना. हाँ, तो इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 करो. पहले कौन सा अभी इलस्ट्रेशन कर रहे हो आप? फर्स्ट इलस्ट्रेशन, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8. हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट. 2 दिन का आएगा ना, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन. बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक ही डेट का आता है, दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन का. एंड और क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग होल्डिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी 2 लाख इन ईच केस. सो केस 1 2 3 4 ABCD. सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट किया. फर्स्ट केस में आपने क्या किया? 1,50,000 का 10%, 1,30,000 का 15%, फिर 70,000 का 20%. डी में डैश, ये हुआ डेट ऑफ एक्विजिशन का. एंड बैलेंस शीट का 1,70,000 का 10%, 1,20,000 का 15%, 70,000 का 20% एंड डैश नील. माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए ये कॉस्ट आपने कंपेयर की होगी 1,50,000 के 90% के साथ, इसमें 1,30,000 के 85% के साथ, इसमें 70,000 के 80% के साथ, एंड इसमें 90,000 के साथ ही कंपेयर की ना 1 लाख. तो 10,000 गुडविल आया होगा. हाँ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व. एंड बैलेंस इन P&L ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज कैपिटल प्रॉफिट. As such, that balance of consolidated P&L account shall be equal to holding company's profit. So on 31st December, in each case, the following amount shall be added or deducted from the balance of holding company's P&L. So holding company का खुद का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख. एंड ये देखो प्रॉफिट डे 1 को केस 1 में ओपनिंग प्रॉफिट 50,000 था, क्लोजिंग 70 था.
सो देर इज अ इंक्रीज ऑफ 20,000, उसका 90%, 20,000 का 90% इज 18,000, आपको कहाँ पर ऐड करना है, 2 लाख में, प्रॉफिट टू बी एडेड। ओके, अभी इसमें कितना डिफरेंस है, केस 2 में प्रॉफिट पहले 30 का 20 हुआ, मतलब 10,000 का लॉस हुआ, सो उसका 85%, मतलब 8,500 माइनस करना है। हाँ देना, नाही कुठे आहे? हाँ 8,500 लॉस है। ओके, एंड केस 3 में पूरे साल क्या कर रहे थे ये, कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया इन्होंने, सो रहे थे। एंड इन्होंने क्या किया केस 4 ने, 15,000 का प्रॉफिट, ये पूरा हमें ही मिलने वाला है 100%, तो 15,000 ऐड करना है। इलस्ट्रेशन 2, लास्ट लाइन पढ़ो पहले, शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। सो डिविडेंड अगर पोस्ट एक्विजिशन है तो क्रेडिटेड टू P&L, प्री एक्विजिशन है तो डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। What is the amount of minority interest as on 1st Jan and 31st December? Also, please check whether there should be any goodwill or capital reserve at the date of acquisition. Also, please check. XYZ Limited purchased 80% shares of ABC Limited on 1st Jan for 1,40,000. ये cost of investment. The issued capital of ABC Limited on 1st Jan 2001 was 1 lakh. And the balance in P&L was 60,000. During the year ended 31st December 2001, ABC Limited earned a profit of rupees 20,000 and at the year end declared and paid a dividend of 15,000. So ये post acquisition का dividend है ना, so total dividend paid is 15,000, assumed to be out of post acquisition profit. हमारा share 80% है। Hence dividend received by XYZ Limited will be credited to P&L, क्योंकि वो पोस्ट एक्विजिशन का है। 15,000 का 80% इज 12,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L 12,000। सो ये आ गया, एंट्री हो गई, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% होगा ना, 1 लाख का 20% इज 20,000 and 60,000 का 20% is 12,000. So 20,000 plus 12,000, 32,000 is minority interest on the date of acquisition. And last date को ये 1 लाख का तो 20% is 20,000 and profit आपने earn किया 20 का ना, उसमें से 15 का डिविडेंड दिया, मतलब 5,000 का प्रॉफिट। 5,000 का 20% इज, हाँ डिविडेंड 15,000 का था, होल्डिंग को 12,000 या तो 3,000 ही बचा था माइनॉरिटी। हाँ, 1,000 प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका 20% मिलेगा ना, तो ऑलरेडी ये मिलाई है 32,000, उसमें 1,000 ऐड करो, 33,000। माइनॉरिटी को जो डिविडेंड मिला है, डिविडेंड का ही निकाल, तो वो डिविडेंड इधर नहीं रिकॉर्ड करना है, आउटसाइडर्स का डिविडेंड का इनकम हमें क्यों रिकॉर्ड करना है, हमें क्या रिकॉर्ड करना है, हम होल्डिंग है, होल्डिंग को जो शेयर मिला है डिविडेंड में, कितना मिला था, हाँ दैट इज 12,000, वो P&L को क्रेडिट होगा। आपको जो सिखाया गया है डिविडेंड की ट्रीट में कि प्री एक्विजिशन वाला लेस करो फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पोस्ट एक्विजिशन वाला P&L को क्रेडिट करो, वो किसका सिखाया है, होल्डिंग कंपनी शेयर इन डिविडेंड। माइनॉरिटी के डिविडेंड का हमें क्या करना है, वो उनके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो आपको शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी का 1 लाख,
उसका 20% इसको मिलेगा, 60,000 का 20% प्लस जो प्रॉफिट 5,000 हुआ उसका 20, बस इतना ही। उनके डिविडेंड के बारे में मत सोचो क्या होगा, वो देख लेंगे। अभी गुडविल और कैपिटल रिजर्व करो। कॉस्ट इज 1,40,000, 1,60,000 का 80%, 128, 12,000 का गुडविल, 12,000 का गुडविल। इलस्ट्रेशन 3, कैलकुलेट, लास्ट लाइन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ Z Limited. So X Limited acquires 70% of equity shares of Z Limited on 31st March at a cost of rupees 70 lakhs. The following information is available from the balance sheet of Z Limited. PPE, investment, current assets, loans and advances, 15% debentures, current liabilities. The following revaluation have been agreed upon, not included in the above figures. PPE up by 20%, investment down by 10%. Z Limited declared and paid dividend at 20% on its equity shares on 31st March 2001. हाँ, जिसकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर है। X Limited purchased the shares of Z Limited at rupees 20 per share. So cost of investment 70 lakh माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। डिविडेंड का रेट क्या है? 20% ऑन शेयर कैपिटल। एक शेयर 10 रुपए का है, बट जो एक्स लिमिटेड ने परचेस किए शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? हाँ, 70 लाख डिवाइडेड बाय 20 पर शेयर। 70 lakh divided by 20 is 3,50,000 number of shares into 10, 35 lakh into 20%। 7 lakh में हमारा शेयर, माइनॉरिटी को रखो 30%, पूरा 7 लाख लेके मत घूमो। 7 लाख का 70% is pre-acquisition dividend. Deduct it from cost of investment. ओके, 3.5 लाख, सॉरी ये हमारा ही आ गया ना, सारे शेयर्स हमारे ही आ गए वो 3.5 लाख, क्योंकि वो 70 लाख पे किया है हमने, 70% के लिए पे किया है। सो 3.5 लाख सभी शेयर हमारे ही है, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 70% करोगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। ये तो हमारे ही शेयर है, तो इसके ऊपर जो आपने निकाला था 7 लाख वही करेक्ट है। तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस किया 70 लाख से, 63 लाख क्या आया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट, वो कंपेयर करो नेट एसेट्स के साथ एंड देन डिसाइड करो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पीपी 20% से अप मतलब 144, इन्वेस्टमेंट डाउन बाय 10% 49.5, बाकी सेम करंट एसेट्स वगैरह। करंट एसेट्स 70, लोन्स एंड एडवांसेस 15 एंड 15% डिबेंचर्स एंड करंट लायबिलिटीज 90 एंड 50। ये माइनस करके 138.5, उसका 70%, इसके साथ कंपेयर करो 96.95 के लिए आपने 63 पे किए, कैपिटल रिजर्व ऑफ 33.95। सिंस डिविडेंड रिसीव्ड इज फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, इट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सब। तो इसको स्टार मार्क को और स्टार मार्क या हाईलाइट करके रखो। इसमें सिर्फ आपको निकालना था प्री एक्विजिशन डिविडेंड का अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स लगेंगे, ठीक है।
4 से हायर लेवल स्टार्ट हो रही है। सो एक्सरसाइज में आ जाओ। 8 तक गए थे ना आप? मतलब रुकना ही पड़ेगा क्या हमें? हाँ 9 एंड 10 दो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है। तो अब जो हमने किया वही रिवाइज करो, ठीक है। सो कल क्या डेट है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना। सो कल क्या डेट है? 14। आपका पेपर कब है? 16। तो 2 दिन तो और लगेंगे कंसोलिडेशन खत्म होने के लिए। आपको मॉर्निंग में बुलाया तो आ सकते हो आप। मॉर्निंग में, मॉर्निंग नहीं, 12 बजे, आफ्टरनून ही, 12 to 1 एंड फिर से शाम को भी, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल 12 to 1। हाँ, और उसके पहले भी आ सकते हो क्या? नहीं तो 11:30 to 1:30 लेते हैं, 2 घंटे का खत्म कर देते हैं आफ्टरनून में। हाँ, अगर लगा तो शाम में भी, या मॉर्निंग में ही खत्म करते हैं, जैसे आप बोलोगे। हाँ, सो 11:30 to 1:30 कल डन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 11:30 to 1:30 फॉर कंसोलिडेशन कल मॉर्निंग। कौन है ऑनलाइन? पार्थ। ओके, यस, चलो बाय बाय।